Today is Pastor Joseph's birth anniversary. और आज का जो दिन है, तारीख जो है, वो पासवान जोसेफ का जन्मदिन है. 90th birth anniversary. वो 90 साल की जो बर्थ एनिवर्सरी है. So it is a privilege to have your father in our lives. ये हमारा सौभाग्य है कि हमारे जीवन में एक पिता हैं. So today I want to meditate something on the necessity of a father. तो आज जो इस विषय पर हम मनन करने वाले हैं वो ये है कि पिताओं का होने की आवश्यकता. Let's all turn to 2 Kings chapter 2. हम दूसरे राजाओं का किताब दूसरा अध्याय verse 1 to 15. 1 से लेकर 15 तक. Can you read? And it came to pass when Elijah the Lord was about to take up Elijah into heaven by a whirlwind, that Elijah went with Elisha from Gilgal. Then Elijah said to Elisha, "Stay here, please, for the Lord has sent me on to Bethel." But Elisha said, "As the Lord lives, and as your soul lives, I will not leave you." So they went down to Bethel. Now the sons of the prophets who were at Bethel came out to Elisha and said to him, "Do you know that the Lord will take away your master from over you today?" And he said, "Yes, I know. Keep silent." Then Elijah said to him, "Elisha, stay here, please, for the Lord has sent me on to Jericho." But he said, "As the Lord lives and as your soul lives, I will not leave you." So they came to Jericho. Now the sons of the prophet who were at Jericho came to Elisha and said to him, "Do you know that the Lord will take away your master from over you today?" So he answered, "Yes, I know. Keep silent." Then Elijah said to him, "Stay here, please, for the Lord has sent me on to the Jordan." But he said, "As the Lord lives and as your soul lives, I will not leave you." So the two of them went on, and 50 men of the sons of the prophet went and stood facing them at a distance, while the two of them stood by the Jordan. Now Elijah took his mantle, rolled it up, and struck the water, and it was divided this way and that, so that the two of them crossed over on dry ground. And so it was, when they had crossed over, that Elijah said to Elisha, "Ask, what may I do for you before I am taken away from you?" Elisha said, "Please, let a double portion of your spirit be upon me." So he said, "You have asked a hard thing. Nevertheless, if you see me when I am taken from you, it shall be so for you. But if not, it shall not be so." Then it happened, as they continued on and talked, that suddenly a chariot of fire appeared with horses of fire and separated the two of them. And Elijah went up by a whirlwind into heaven. And Elisha saw it, and he cried out, my father, the chariot of Israel and its horsemen." So he saw him no more, and he took hold of his own clothes and tore them in 2 pieces. He also took up the mantle of Elijah that had fallen from him and went back and stood by the bank of the Jordan. Then he took the mantle of Elijah that had fallen from him and struck the water and said, "Where is the Lord of Elijah?" And when he also had struck the water, it divided this way and that, and Elisha crossed over. Now when the sons of the prophet were from Jericho saw him, they said, "The spirit of Elijah rests on Elisha." And they came to meet him and bowed to the ground before him. दूसरे राजाओं का किताब दूसरा अध्याय 1 से लेकर 15. जब यहोवा एलिया को बवंडर के द्वारा स्वर्ग में उठा लेने के लिए था, तब एलिया और एलीशा दोनों संग संग गिलगाल से चले. एलिया और एलीशा ने से कहा, यहोवा मुझे बेतेल तक भेजता है, इसलिए तू यहीं ठहरा रह. एलीशा ने कहा, यहोवा के ओर तेरे जीवन की शपथ में मैं तुझे नहीं छोड़ने का, तेरे जीवन की शपथ मैं तुझे नहीं छोड़ने का. इसलिए कि वे बेतेल को चले गए. और बेतेलवासी भविष्यद्वक्ताओं के चेले एलीशा के पास आकर कहने लगे, क्या तुझे मालूम है कि आज यहोवा तेरे स्वामी को तेरे ऊपर से उठा लेने पर है? उसने कहा, हाँ
मुझे भी यह मालूम है, तुम चुप रहो। और एलिया ने उससे कहा कि हे एलीशा, यहोवा मुझे यरीहो को भेजता है, इसलिए तू यहीं ठहरा रहे। उसने कहा, यहोवा की ओर तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ने का। सो वे यरीहो को आए। और यरीहो वासी भविष्यद्वक्ताओं के चेले एलीशा के पास आकर कहने लगा, क्या तुझे मालूम है कि आज यहोवा तेरे स्वामी को तेरे ऊपर से उठा लेने पर है? उसने उत्तर दिया, हां मुझे मालूम है, तुम चुप रहो। फिर एलिया ने उससे कहा, यहोवा मुझे यरदन तक भेजता है, सो तू यहीं ठहरा रहे। उसने कहा, यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ने का। सो वे दोनों आगे चले और भविष्यद्वक्ताओं के चेले में से 50 जन तक का कर उनके सामने दूर खड़े रहे और वे दोनों यरदन की तीर खड़े हुए। तब एलिया ने अपनी चद्दर पकड़कर ऐंठ ली और जल पर मारा। तब वह इधर उधर दो भाग हो गया और वे दोनों स्थल ही स्थल पार उतर गए। उनके पार पहुंचने पर एलिया ने एलीशा से कहा, उससे पहले कि मैं तेरे पास से उठा ले जाऊं, जो कुछ तू चाहे कि मैं तेरे लिए करूं वह मांग। एलीशा ने कहा, तुझ में जो आत्मा है उसका दूना भाग मुझ पर आ जाए। एलिया ने कहा, तूने कठिन बात मांगी है, तो भी यदि तू मुझे उठा लिए जाने के बाद देखने पाए तो तेरे लिए ऐसा ही होगा, नहीं तो न होगा। वे चलते चलते बातें कर रहे थे कि अचानक एक अग्निमय रथ और अग्निमय घोड़ों ने उनको अलग अलग किया और एलिया भवंडर में होकर स्वर्ग पर चढ़ गया। और उसे एलीशा देखता और पुकारता रहा, हाय मेरे पिता, हाय मेरे पिता, हाय इज़राइल के रथ और सवारों। जब वह उसको फिर देख न पड़ा तब उसने अपने वस्त्र फाड़े और फाड़ कर दो भाग कर दिया। फिर उसने एलिया की चद्दर उठाई जो उस पर से गिरी थी और वह लौट गया और यरदन के तीर पर खड़ा हुआ और उसने एलिया की वह चद्दर जो उस पर से गिरी थी पकड़कर जल पर मारी और कहा, एलिया का परमेश्वर यहोवा कहां है? जब उसने जल पर मारा तब वह इधर उधर दो भाग हो गया और एलीशा पार हो गया। उसे देखकर भविष्यद्वक्ताओं के चेले जो यरीहो में उसके सामने थे कहने लगे, एलिया में जो आत्मा थी वह एलीशा पर ठहर गई है। सो वे उससे मिलने के आए और उसके सामने भूमि तक झुककर दंडवत की। Today I thought I will share few things about a father. आज मुझे लगा पिता के विषय कुछ बातें मैं आपसे बांटूंगा। In fact, we all have fathers. सच बात यह है, हम सभी के जीवन में पिताएं हैं। Some people have good fathers, some people may not have very good fathers. कुछ लोगों के जीवन में शायद उनके पिता अच्छे थे, कुछ लोगों के पिता अच्छे नहीं थे। Some fathers are present, some fathers are absent. कुछ पिताएं जो है वो आज भी उनके साथ है, लेकिन कुछ उनके साथ नहीं है। Some fathers are very nice or some fathers are very moody. कुछ पिताएं ऐसे हैं जो बहुत अच्छे स्वभाव के हैं, लेकिन कुछ होते हैं उनके जो स्वभाव है ये निरंतर बदलते रहता है। No matter how a father is, चाहे एक पिता कैसे भी क्यों ना हो, it is very important for us to relate with a father correctly. ये बहुत जरूरी है कि हम अपने पिता के साथ सही रिश्ता रखें। This is a very important attitude of our life, or I will tell like this. It is a single most attitude in our lives which will determine our well-being. और मैं आपसे कहना चाहूंगा ये ऐसा एक स्वभाव होगा आपके जीवन का जो आपके जीवन के स्थान को निर्णय करेगा। Fathers are, we all are born, somebody should have been your father. और हम सभी का इस पृथ्वी में जन्म हुआ है, उसका अर्थ है कोई ना कोई तो हमारा पिता था ही।
But we should know, fathers are not born, they are made. लेकिन हमें यह जानना है कि पिताओं का जन्म नहीं होता, पिताओं को बनाना पड़ता है। God gives a father to bless. परमेश्वर पिताओं को आपके जीवन में देता है ताकि आपको आशीष दे पाए। Your father can be a blessing to a family or to a community or even to a nation. एक पिता जो है ये एक आशीष बन सकता है अपने परिवार के लिए, या तो अपने समूह के लिए, या तो पूरे देश के लिए भी। There are many fathers we actually have in the course of our life. और हमारे जीवन में हम कई सारे पिताएं हमारे जीवन में आते हैं। First, we have our natural father. सबसे पहले जो प्राकृतिक पिता है जिसने हमको जन्म दिया है वो आते हैं। Then comes our spiritual father. और फिर उसके पश्चात हमारे एक आत्मिक पिता भी आते हैं। Then comes our spiritual, our father-in-law. फिर हमारे जो ससुर जी हैं वो भी आते हैं। Then comes your father in ministry. और फिर एक पिता जो सेवकाई में आपकी मदद करता है वो आता है। There are fathers in the community. समूह में कई सारे पिता ऐसे हैं। For example, this whole country has a father, father of our nation. और उदाहरण के तौर पे हमारे पूरे देश के एक पिता हम मानते हैं जो इस देश के राष्ट्रपिता मानते हैं। Is a father of our nation. महात्मा गांधी जी जो है उसे हम हमारे राष्ट्र के पिता मानते हैं। Fathers are a gift from God. और पिताएं जो है परमेश्वर की ओर से एक भेंट है हमारे लिए। Becoming a father itself is a change of so many equations in your life. और अपने जीवन में एक पिता बनना यही कई सारी बातों को आपके जीवन में बदल देता है। Same way for the mother, becoming a mother is something which is very it takes her into another dimension altogether. उसी प्रकार एक मां के जीवन में भी जब वो मां बनती है तो वो एक अपने जीवन में अलग ही श्रेणी में पहुंच जाती है, अलग क्षेत्र में पहुंच जाती है। But Bible talks about a different fatherhood which is not exactly a human fatherhood. लेकिन बाइबल हमें एक अलग पिता के विषय में बताता है जो हमारे प्राकृतिक पिता जो है जिन्होंने हमें जन्म दिया है उनके बारे में नहीं, बल्कि अलग एक पिता के बारे में। I feel you should become a Bible father to really be a effective human father. और मुझे ऐसा लगता है कि आप बाइबल के हिसाब से जो पिता है वो आपको पहले बनना है ताकि आप प्राकृतिक तौर पर भी एक अच्छे या प्रभावशाली पिता बन सके। Let me explain. ये मैं आपको विस्तार में बताऊंगा। Let us turn to 1 John chapter 2 verse 12. पहला यूहन्ना 2:12 को देखेंगे। 1 John chapter 2 verse 12. पहला यूहन्ना 2। It says, I write to you little children, because of your sins are forgiven you for his name's sake. पहला यूहन्ना 2:12 कहता है, हे बालकों मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि उनके नाम से तुम्हारे पाप क्षमा हुए। Who is this Balak? और ये बच्चे किसके बारे में लिखा है? They are not Sunday school children. ये कोई संडे स्कूल में पढ़ाई करने वाले कोई बच्चे नहीं हैं। They are actually adults sitting in the church. वो सचमुच बड़े बुजुर्ग हैं जो यहाँ पर कलीसिया में बैठे हुए But they हैं। are actually children. लेकिन सचमुच वो बालक के समान है। You go to the next word. अगला वचन पढ़िए। I write to you fathers because you have known him who is from the beginning. और हे पितरों मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि जो आदि से है। Now he is talking about the fathers. Now who are these fathers? अब यहां पर पिताओं के बारे में लिखा है। अब ये पिताएं कौन है? Now they are not the married men sitting in the church. ये वो विवाहित पुरुष जो कलीसिया में बैठे हैं उनके बारे में नहीं लिखा है। No, they are fathers. वो पिताएं हैं। They are not the children. वो वहां पे संतान बनकर नहीं Then बने it हैं। goes ahead to say, I write to you young men, you have overcome the wicked one. और फिर आगे लिखा है कि मैं तुम्हें जवानों तुमसे लिखता हूं कि तुमने दुष्ट पर जय पाई है। My friends, fathers know something which you don't know.
और दोस्तों, आपको जानना जरूरी है कि पिताएं ऐसी कुछ बातें जानते हैं जो आप नहीं जानते। I know that after I really became your father. और ये fathers know things which you may not know. और ये मैं तभी जान पाया जब मैं स्वयं एक पिता बन पाया कि पिताएं ऐसी बातें जानते हैं जो आप नहीं जानते। It may not be exactly true, but it is fairly true even in your family. और ये 100% सही शायद आपके परिवार में नहीं होगा, लेकिन अधिकतर इसमें आपके परिवार में भी ये बात सही है। Even your human father is not a very perfect father, but still he knows something which you have to get from him. आपके जो प्राकृतिक पिता है जिन्होंने आपको जन्म दिया है, वो भी शायद सारी बातों को नहीं जानते, लेकिन कई सारी बातों को वो भी जान पाएंगे। It says in verse 13, 1 John chapter 2 verse 13, because you have known him who is from the beginning. That means he has your knowledge of God. That's what it says. और पहला यूहन्ना 2:13 में लिखा है, हे पितरों, मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि तू जो आदि से है तुम उसे जानते हो। उसका अर्थ है कि वो परमेश्वर के बारे में कुछ बोध रखते हैं। Even in 14 it says, I have written to you fathers because you have known him who is from the beginning. और 14वें वचन में भी लिखा है, पितरों, मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि जो आदि से है तुम उसे जान गए हो। Fathers know something. पिताएं कुछ बातों को जानते हैं। Because he knows something, you better be careful with those guys. और क्योंकि ये लोग कुछ जानते हैं, आप इनके साथ संभल कर रहे। And let me tell you one thing, many fathers don't even know they have something. और ये बात भी आप सुन लो कि कई पिता ये भी नहीं जानते कि वो कुछ बातें जानते हैं। I had a father when I married my wife. I got another father. He is my father-in-law. जब मेरी शादी हुई, मेरे पत्नी के जो पिता थे, मेरे ससुर, मुझे एक और पिता के रूप में मुझे मिले। One of the wisest men I have ever met in my whole life. और मेरे पूरे जिंदगी में जिन लोगों से मैं मिला था, उनमें से सबसे एक उत्तम ज्ञानी पुरुष वो थे। Now the truth of the matter is he doesn't know he carries something. लेकिन सच्चाई ये थी कि वो स्वयं भी नहीं जानते थे कि वो ऐसी बातों को लिए चल रहे थे। So many years I will always ask him question, Daddy, what is this? What do you think about this? What do you think? He never ever gave me any answer. और कई सालों तक मैं ये सवाल उनसे पूछता रहा कि पिता, ये इसका मतलब क्या है, ये इनके बारे में आप क्या कहते हो, लेकिन कभी उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। This is my journey. ये मेरी यात्रा। Many fathers don't even know they carry something. कई सारे पिता ये जानते ही नहीं कि वो इन बातों को लिए चलते हैं। Because they don't know, they don't give it to their children and go. और क्योंकि वो नहीं जानते, वो अपने बच्चों को ये देकर नहीं जा पाते। They know something which we don't know. वो कुछ बातों को जानते हैं जो आज हम नहीं जानते। My fathers knew something which I don't know and I had to know. और मेरे जो पिताएं हैं वो ऐसी बातों को जानते थे जो मैं नहीं जानता था और जो वो जानते थे। Fathers need to develop generosity. और पिताओं को ये एक गुण जो है कि सभी को वो दे पाए, ये एक मनोभावना उनको तैयार करना है। I think that is the number one quality of a father. ये एक सबसे पहला गुण है जो एक पिता को तैयार करना है। Because generosity will always make you to transfer and go. क्योंकि ये जो गुण है उदारता, ये ही आपको मदद करेगा कि आप ये उनके जीवन में देकर जा सके। Let's jump. Psalm 34:11. भजन संहिता 34 उसका 11वां वचन। It says, "Come, you children, listen to me. I will teach you the fear of the Lord." यहां पर लिखा है, हे लड़कों, आओ मेरी सुनो, मैं तुमको यहोवा का भय मानना सिखाऊंगा। Today you learn a very strategic lifestyle from your father. आज आप एक बहुत ही महत्वपूर्ण जीवन शैली अपने पिताओं से सीख पाओगे। The fear of God. परमेश्वर का भय मानना। The fear of God is the greatest quality your father can have. और सबसे बड़ा गुण जो एक पिता में हो सकता है वो है कि वो परमेश्वर का भय मानते हो। Fear of God.
परमेश्वर का भय The मानना greatest possession a woman can have is the fear of God. और एक स्त्री के जीवन में भी सबसे बड़ी एक चीज जो गुण वो अपने जीवन में रख सकती है वो है परमेश्वर का भय मानना. When a man or a woman doesn't fear God, his life is not right. जब एक आदमी या एक औरत वो परमेश्वर का भय नहीं मानती हो तो उसकी जीवन शैली सही नहीं हो She सकती. can do anything. वो कुछ भी कर सकती है. He can do anything. वो कुछ भी कर सकता है. You can never ever trust a person who has no fear of God. आप कभी भी ऐसे एक व्यक्ति पर भरोसा नहीं रख सकते जो परमेश्वर का भय ना मानता हो. I don't trust a person who has no fear of God. मैं ऐसे एक व्यक्ति पर कभी भी भरोसा नहीं करता जो परमेश्वर का भय नहीं मानता हूं. Because they don't fear God. If they don't fear God, they don't fear anything. और क्योंकि वो अगर परमेश्वर का भय नहीं मानते तो वो किसी भी चीज का भय नहीं मानते. They will do anything. वो कुछ भी कर सकते हैं. Are you with me? क्या आप मेरे साथ हो? If you have a friend who has no fear of God, it's dangerous. अगर आपके जीवन में ऐसा कोई मित्र है जिसके जो कोई परमेश्वर का भय नहीं मानता तो ये खतरनाक हो सकता The है. earliest you cut them in your life, you will be safe. और ये बेहतर होगा कि जितना जल्दी हो सके आप ये जो रिश्ता उसके साथ है वो काट दे. ये आपके लिए बेहतर होगा. Woe to them who marry them. और जो लोग उनसे विवाह करेंगे उनके जीवन में तो कितनी बड़ी श्राप आई है. I always want such marriages not to happen. और मैं हमेशा चाहता हूं कि ऐसे विवाह होए ही नहीं. Fathers transfer wisdom to their children. पिताएं अपने संतानों में ज्ञान वो उनको देते हैं. I have told you, my father has to tell one statement for 10 years for a wise son to pick it up. और मैंने आपसे कहा कि किस प्रकार मेरे पिता को एक ही बात 10 साल तक निरंतर कहना पड़ा ताकि उनका ज्ञानी पुत्र इस बात को समझ पाए. I am saying something today. आज मैं कुछ बातें आपसे कर रहा हूं. Yeah. Fathers can teach wisdom. पिताएं ज्ञान के विषय सिखा सकते हैं. Nobody can teach you wisdom. कोई भी आपको ज्ञान के बारे में नहीं सिखा सकता. And wisdom is the only thing you need to build your life, to build the kingdom, to build the city. और ज्ञान वो एकमात्र चीज है जिससे कि आप अपने जीवन को बांध सकते हो, इस शहर को बांध सकते हो, इस देश को बांध सकते हो. Anything you want to build, you need wisdom. आपको किसी भी चीज को बांधना हो आपको ज्ञान की जरूरत है. Without wisdom, you can't build anything. और बिना ज्ञान के आप कुछ भी चीज बांध नहीं सकोगे. The minimum you have to build your life. कम से कम आपको अपना ही जीवन तो बांधना होगा. And build a house. एक घर को बांधना होगा. At least that is a minimum expected of any one of you. किसी भी व्यक्ति से कम इतनी अपेक्षा हम करते हैं. Wisdom flows from a father. ज्ञान एक पिता से बहकर आता है. Okay. Now, I also assume that some of you may not have good relationship with your fathers. और I assume, I don't know. मैं इस बात को पूरी तरह से जानता तो नहीं लेकिन ऐसा लगता है कि आप में से कुछ लोग ऐसे जरूर होंगे जिनका अपने पिताओं के साथ अच्छा संबंध या रिश्ता नहीं है. Because when I was a young man, I didn't have a good relationship with my own father. क्योंकि जब मैं एक जवान व्यक्ति था तो मेरे पिता के साथ एक अच्छा रिश्ता मेरा नहीं था. I thought he is not understanding me. मुझे ऐसा लगता था कि ये व्यक्ति मेरी बातों को समझ ही नहीं पा रहा है. There was a lot of communication gap between me and my dad. हम दोनों के बीच में जो बातें होनी चाहिए थी उसमें बहुत अंतर था. So you should understand, young people usually don't. It's easy to go away from your dad. तो इस बात को आप समझिए जो जवान है वो अपने पिता से दूर जाना ये बहुत आसान है. So if you are suffering with that type of disease which I was suffering from, I really want to help you. और अगर आप भी ऐसी एक बीमारी जिससे मैं पीड़ित था उसमें आप भी पीड़ा सह रहे हो तो मैं आपकी मदद करना चाहता हूं. Yeah. I really want to help you. और If your father is wrong or he has abused you, he has not behaved with you properly, today I want to say sorry to all you young people whose fathers have done wrong with you. और अगर आपके
आपके पिता ने आपके साथ सही व्यवहार नहीं किया या आपका शोषण किया है या आपको सही मार्ग नहीं दिखलाया, तो मैं उनकी तरफ से आप सभी जितने भी जवान यहां बैठे हैं आपसे मैं माफी मांगता हूं। On his behalf. उनकी तरफ से, Because I understand one thing. क्योंकि एक बात को मैं समझ गया, Without a father's blessing, you cannot prosper. एक पिता के आशीष के बिना आप कोई उन्नति प्राप्त ही नहीं कर सकते। That's why you see a lot of people who do not know Jesus, they are prospering. और इसलिए आप देखोगे जो यीशु को नहीं जानते उनके जीवन में वो कई उन्नति वो देख पा रहे They हैं, are going high. वो बड़े आगे बढ़ते जा रहे हैं। They have no God. उनके जीवन में कोई परमेश्वर है ही नहीं, There is no truth. कोई सच्चाई भी नहीं है, Because they honor their father. लेकिन वो अपने पिताओं का आदर करते हैं। Somewhere you are children of God. You have a double blessing on you already. और आप परमेश्वर के संतान हो, आपके ऊपर पहले से परमेश्वर का दुगना आशीष है। So today, why you have to suffer? Because you are faltering in one principle. तो आज आप क्यों पीड़ा सहे? क्योंकि आपने एक सिद्धांत जो है उसमें आप गलत हो रहे हो। So I am teaching with a burden in my heart that each one of you will have a father, will have a father's blessing, and you will excel today. Today we will change some things. तो आज मेरे हृदय में एक बोझ के साथ मैं ये बातें सिखा रहा हूं कि आप सभी के जीवन में आप पिताओं का आशीष पाए और आपके जीवन को पूरी तरीके से हम परिवर्तित कर दें। Let's turn to Proverbs chapter 2 verse 1. नीति वचन 2:1 को देखेंगे। Yeah, can we read it together? 1, 2 and 3. और नीति वचन दूसरा अध्याय 1, 2 और 3 को हम साथ मिलकर पढ़ेंगे। 2:1. My son, है मेरे पुत्र, यदि तू मेरे वचन ग्रहण करे और मेरी आज्ञाओं को अपने हृदय में रख छोड़े और बुद्धि की बात ध्यान से सुन और समझ के बात मन लगा कर सोचे और प्रवीणता और समझ के लिए अति यत्न से पुकारे। It says father's words carry wisdom. और यहाँ पर लिखा है कि पिताओं के जो शब्द है वो ज्ञान लिए चलते हैं। Let's turn to Proverbs chapter 4 verse 1. नीति वचन 4:1 को देखेंगे। Read it, let us read it हम together. साथ मिलकर पढ़ेंगे। है मेरे पुत्रों, पिता की शिक्षा सुनो और समझ प्राप्त करने की मन लगाओ। Now let us read verse 10, 11, 12, 13. 10 से लेकर 13 तक भी पढ़ेंगे इसी अध्याय में। है मेरे पुत्र, मेरी बातें सुनकर ग्रहण कर, तब तू बहुत वर्ष तक जीवित रहेगा। मैंने तुझे बुद्धि का मार्ग बताया है और सिधाई के पथ पर चलाया है। चलने में तुझे रोक टोक न होगी और चाहे तू दौड़े तो भी ठोकर न खाएगा। शिक्षा को पकड़ रख, उसको छोड़ न दे, उसकी रक्षा कर, क्योंकि वही तेरा जीवन है। Can we read one more verse? एक और वचन क्या हम पढ़ेंगे? Proverbs 5:1. नीति वचन 5वां अध्याय पहला वचन। My son, है मेरे pay पुत्र, attention मेरी to my बुद्धि की wisdom, बातों पर lend ध्यान your दे, ear to my मेरे understanding. समझ की ओर कान लगा। Now, I don't want to go beyond this because there are multiple more references where it proves to anyone beyond doubt wisdom flows from a father. और मैं और अधिक वचन नहीं पढ़ना चाहूंगा, लेकिन इतने सारे वचन बाइबल में दिए गए हैं जो हमें साबित करता है कि परमेश्वर पिता के मुंह से ही ज्ञान बहता है। You need wisdom. आपको ज्ञान की जरूरत है। Without wisdom, you can't live successfully. और इस ज्ञान के बिना आप कभी भी उन्नति के साथ इस पृथ्वी पर नहीं And जी it पाओगे। flows from a father. और वो बहता है एक पिता की ओर से। When you don't have a right picture about your father, जब एक सही चित्र आपके मन में आपके पिता के विषय नहीं है, how can you flow in wisdom? तो आप ज्ञान में कैसे बह पाओगे? Definitely many fathers are not up to the mark. निश्चित तौर पे ये बात सही है कि कई पिता पूरे उत्तमता पे नहीं पहुंचे हैं। Fathers are bridges between generations. है वो कई पीढ़ियों के बीच में बना हुआ पुल है। Every father हर एक पिता is a link you have to something, a well of revival which was beyond him. और हर एक पिता एक कड़ी है ऐसी अद्भुत कुछ बातों के साथ जो बेदारी की जो कुएं हैं उनके साथ जुड़ा हुआ है। Your father can only give you the blessings of a generation upon you.
केवल एक पिता ही एक पूरी पीढ़ी की आशीष आप तक पहुंचा सकता है। Please listen to this. इस बात को ध्यान से सुनना, Because fathers are like a marathon runners. You know, sorry, what is that? Relay runners. Relay runners. They are fathers are like relay runners. जो रिले दौड़ होती है उसी के प्रकार पिताएं भी होते हैं, He is having a baton, और उनके हाथों में एक बैटन है, which he has received it from the yesteryears, और yester generation. पिछले पीढ़ी से जो उनके हाथों में मिला है वो लेकर वो He आगे is बढ़ रहे running हैं, with that, वो उसी के साथ उसको लिए दौड़ रहे हैं, and he will give it to you. और वो आपके हाथों में देता है। That is very important, ये बहुत महत्वपूर्ण है, so that you will run your race. ताकि आप अपनी दौड़ को दौड़ लगा सके। Because fathers are basically, they will give you what they are having. और क्योंकि सचमुच पिताएं जो है, जो उनके हाथों में है, वो आपको वो दे देते हैं। So fathers are not just ordinary. तो ये कोई साधारण लोग नहीं है। Many fathers actually don't know that they have something, they are carrying something. और कई पिताएं इस सच्चाई को नहीं जानते कि उनके पास कुछ है, वो कुछ बातों को लिए चल रहे हैं। Now, let me read to, let us all turn to Joel chapter 2 verse 28. योएल 2 उसका 28वां वचन हम देखेंगे। Okay? Can we read it together? क्या हम इसे साथ मिलकर पढ़ेंगे? Joel 2, 28, 29 and 30. योएल उसका दूसरा अध्याय 28वें वचन से 30वें It वचन। shall come to pass उन बातों के afterward बाद that में I सब pour प्राणियों out my spirit on all flesh. Your sons and your daughters shall prophesy. Your old men shall dream dreams. Your young men shall see visions. And also on my manservants and maidservants I'll pour out my spirit in those days. And I will show wonders in the heavens and on the earth, blood and fire and pillars of smoke. Now here it talks about old men and young men. और यहाँ पर ये जो वचन हमने पढ़े, ये जवानों के बारे में और बुजुर्ग लोगों के बारे में लिखा Now हुआ है। young men are having visions. और जो जवान लोग हैं, ये कुछ दर्शन देखते हैं। Old men are having dreams. लेकिन जो बुजुर्ग लोग हैं, वो कुछ स्वप्न देख रहे Now हैं। what is the vision? What is the dream? अब ये स्वप्न क्या होता है, ये दर्शन क्या होता है? I didn't know this. मुझे ये नहीं मालूम था। One day I was listening to a man of God called Miles Monroe. माइल्स मनरो नामक एक परमेश्वर के दास के वो मैं एक दिन सुन रहा था। So he told me like that message is और telling. उस संदेश में वो इस प्रकार कह रहे थे, Vision is something which you can accomplish in one life. दर्शन ऐसी कुछ बातें हैं जो आप एक ही आयु में आप उसे पूर्तिकरण पर लेकर आ सकते हो। Dream is something which you can't accomplish in one life. It requires multiple generations to finish it. लेकिन स्वप्न ऐसी कुछ बातें होती हैं जो आप अपने एक आयु में आप पूरा नहीं कर सकते, कई पीढ़ियों की मदद आपको लगती है कि वो स्वप्न पूरा हो सके। There are some things which you can do in your own life. कुछ बातें ऐसी हैं जो आप अपने ही आयु में पूरा कर सकते हो, But some things it cannot be done in one generation. It लेकिन requires multiple generations. लेकिन कुछ बातें ऐसी होती है जो आप अपने आयु में पूरा नहीं कर सकते हो, कई पीढ़ियों की मदद आपको लगेगी। That is why you need to connect to your father and your sons. और इसी कारण पिताओं को अपने बेटों के साथ, बच्चों के साथ संपर्क में लाना है। Receive the anointing from your father and give it to your sons. और इसीलिए पिता का जो अभिषेक है वो प्राप्त कर कर अपने संतानों को देना है, So that the purposes of God will be fulfilled on this earth. ताकि परमेश्वर के जो उद्देश्य है वो इस पृथ्वी पर पूरा हो सके। My friends, there are things bigger than us. और दोस्तों, हमसे भी बढ़कर कई सारी बातें आज हमारे साथ है। Unless you connect with a father, जब तक आप एक पिता के संपर्क में नहीं आते, what will you receive? आप क्या प्राप्त करोगे? What will you do? आप क्या करोगे? What will you build? आप क्या बांधोगे? You will build something small. और कुछ तो छोटा बांधकर But if बिता you दोगे। connect with your father, लेकिन अगर आप अपने पिता के संपर्क में आते हो, he will give you a dream. वो आपको अपना स्वप्न देगा। My spiritual father said, Thomas, God is giving this Mumbai in a platter in your hands. मेरे आत्मिक पिता ने मुझसे कहा कि थॉमस, इस पूरे मुंबई शहर को परमेश्वर तुम्हें एक थाली पर परोस कर दे रहा है, Dream. और ये एक स्वप्न है। It is a dream. ये एक स्वप्न है। This
He has dreamt और ये स्वप्न उन्होंने देखा है and he has given it to me. और उन्होंने मुझे दे दिया है। Every Sunday I say this. और हर रविवार को मैं ये बार बार दोहरा कर कहता I हूँ। really don't know who is saying what, but I say this. मैं नहीं जानता कि दूसरे क्या बात कर रहे हैं, लेकिन मैं इसे कहता हूँ Because I have received it from him. क्योंकि इसे मैंने उनसे पा लिया है। I will continue to say it. और मैं निरंतर यही बातें Every कहते day I रहूंगा। say. हर दिन मैं इसे कहता हूँ। Every day I pray for it. हर दिन मैं इस विषय में प्रार्थना करता हूँ। My friends, we दोस्तों, receive these things from our fathers. हम इन बातों को अपने पिताओं से ही प्राप्त करते हैं। They are a bridge between generations. और ये एक पुल बनी हुई है कई पीढ़ियों के बीच में। My friends, दोस्तों, fathers are God's gift given to you. पिताएं परमेश्वर का भेंट है जो आपको दिया गया है। Identify them. इन्हें पहचानो। Identify a father. एक पिता को आप पहचाने, That's very important. ये बहुत महत्वपूर्ण है। Today many people don't identify a father. आज कई सारे लोग एक पिता को पहचान ही नहीं पाते। I have seen so many men of God, they have not identified a father. मैंने कई सारे परमेश्वर के दासों को भी देखा है जिन्होंने एक पिता को पहचाना ही नहीं है। I cannot understand that. How they cannot identify a father. और मैं ये नहीं समझ पाता कि कैसे एक पिता को वो पहचान नहीं पा रहे हैं। After identifying a father, you receive him. और उनको पहचानने के बाद आप उनको स्वीकार ले अपने जीवन में। Receive him as a father. एक पिता के तौर पर आप उन्हें स्वीकार ले। Respect him and honor him. उनका आदर करें आप। Yes, honor him. आप उनका आदर करें। It's very important. There is multiple degrees of honor. You honor your father. और कई सारे ऐसे श्रेणी है आपके आदर में, आप अपने पिता का आदर करें। To start with, you can do one thing like this. The word respect comes from the word spect. और जो अंग्रेजी में रेस्पेक्ट जो शब्द है वो स्पेक्ट इस शब्द से बनता है। Respect means again and again. Spect means spectacle. See. और स्पेक्ट जो शब्द है उसका वो बनता है कि आप देखें उसे। Yes. First you see him. पहले आप उन्हें देखें, Identify him. पहचाने, See him. देखें उनकी तरफ। Yes. Respect him. आप उनका आदर करें। Don't turn a blind eye towards your father. आपके जो आत्मिक पिता है उनकी तरफ आप अनदेखा ना बन जाए। Because it is he who can bless you. क्योंकि वही आपके जीवन में आशीष को ला सकते हैं। It is he who can connect you to the generations. वो कई पीढ़ियों के साथ आपका संपर्क वही बना सकते हैं। It is he who can give you wisdom. वही आपको ज्ञान दे सकते हैं। It is he who can give you the anointing. और वही है जो आपको अभिषेक दे सकता है। I was reading a beautiful portion from the Bible. आज बहन आए और हम बाइबल का एक बहुत ही सुंदर भाग उन्होंने पढ़ा। In that portion, और उस भाग में there was a man of God who was a father in those days. और एक परमेश्वर के दास के बारे में लिखा है जो उन दिनों में एक पिता था। Now this man was about to go. और ये जो व्यक्ति था उसके वापस लौटने का समय आ चुका था, वापस जा रहा था। Everybody knew it. और सारे लोग ये जानते थे। There were prophets under him because he was a great prophet. So he had a school of prophets where he was the boss. He was the teacher of prophet, that school. और वो एक बड़े भविष्यद्वक्ता थे और उनके अधीन भी कई सारे भविष्यद्वक्ता थे। वहां पे जैसे उनके लिए काम कर रहे उनके बॉस के समान वो थे। Around 50 young prophets were in that school studying under this man Elijah. और कम से कम 50 ऐसे भविष्यद्वक्ता थे जो इस बड़े भविष्यद्वक्ता एलिया जो थे उनके अधीन पढ़ाई कर रहे थे। And everybody knew this man is going. और सब जानते थे कि ये व्यक्ति जा रहे हैं। ये सारे भविष्यद्वक्ता जानते थे कि जा रहे हैं। But who got the benefit, you know? लेकिन फायदा किसे हुआ ये आप जानते हो? Only one guy. केवल एक ही व्यक्ति, Elisha. एलीशा। The others, they only had a knowledge. क्या हो रहा है? इधर क्या हो रहा है? दूसरे जो थे उनके पास केवल इस विषय में ज्ञान, एक बोध था।
But they were not having the sense लेकिन उनमें यह समझ नहीं थी to receive an anointing from this man. कि वो इस व्यक्ति से उस अभिषेक को प्राप्त कर सके. Are you with me? क्या आप मेरे साथ हो? There is a difference. इसमें एक अंतर है. Having knowledge is different. कुछ बातों की खबर रखना ये बातें अलग है. Today many people know lot of Bible, lot आज of Word of God. कई सारे लोग हैं जो बाइबल के बारे में बहुत बुद्धि रखते हैं, बहुत Great Bible teachers. वो बहुत अच्छी तरीके से बाइबल सिखा भी सकते हैं. But they have missed their father. लेकिन वो अपने जीवन में उन्होंने एक पिता को नहीं पाया है. They have missed their father. लेकिन उन्होंने अपने जीवन में एक पिता को नहीं पाया है. I cannot understand many things in this life. मैं इस जीवन में कई सारी बातें ऐसी हैं जिसे मैं समझ नहीं पाता. I even told one man, let us not miss it. He missed it. और मैंने एक व्यक्ति से जाकर कहा भी कि हम इस चीज को नष्ट ना करें अपने जीवन में, लेकिन उसने खो दिया. Please, let's not do this. मैं आपसे ये निवेदन करता हूं कि हम ऐसा ना करें. But we went ahead and did it. लेकिन आगे बढ़कर ऐसा ही कर दिया. They failed to receive and honor their father. वो इस चीज में वो हार गए थे कि उन्होंने पहचाना नहीं और वो उन्होंने आदर नहीं दिया अपने पिता को. I think so. I may be wrong, but मुझे ऐसा लगता है, शायद मैं गलत भी हो सकता हूं. Many fathers do not know they are carrying something. कई सारे पिता नहीं जानते कि वो ऐसी कुछ बातों को लिए चल रहे हैं. Many fathers are nasty because they don't know they are carrying something. और कई सारे पिता बहुत ही दुर्व्यवहार करते हैं क्योंकि वो नहीं जानते कि वो कुछ बातों को लिए चल रहे हैं. There are fathers who are drinking alcohol. They are drunkards. और कुछ पिता ऐसे हैं जो दारू पीते हैं, वो ऐसे व्यसन के आदी हो चुके हैं. There are fathers who are corrupt. कुछ ऐसे पिता हैं जो वो दूषित हो चुके हैं. Why are they like that? ये ऐसे क्यों है? Because they don't know they carry something. क्योंकि वो नहीं जानते कि कुछ बातों को लिए वो चल रहे हैं. That's why you should receive you should identify your father, receive him and honor him. और इसलिए पहले आपको एक पिता को पहचानना है और उसे स्वीकारना है अपने जीवन में और फिर उन्हें आदर देना है. Yeah. My friends, today I want every one of you to identify fathers in your life. मैं चाहता हूं कि आप में से हर एक अपने पिता को पहचान पाए. When my son went to Chicago, जब मेरा बेटा शिकागो गया, I gave him one advice. मैंने एक ऐसी सलाह उसे दी. Of course, we both blessed him, and I gave him one advice. हम निश्चित तौर पर हम दोनों ने उसे आशीषित किया, लेकिन एक सलाह मैंने उसे दी. When you go into a strange city, जब तुम ऐसे एक अपरिचित शहर में जाते हो, you find a father, तुम एक पिता को पा लेना and you connect to him. और फिर तुम उसके संपर्क में बने रहना. Your business is to find your father. आपका मुख्य काम यह है कि आप अपने पिता को पालें. That's what I told my son. और यही मैंने अपने पुत्र से कहा. When I was young, जब मैं जवान था, I went to a city मैं एक शहर गया to work in that city. और उस शहर में काम करने गया. Then I found a man of God फिर मैंने परमेश्वर के एक दास को पा लिया. who was a teacher of the Bible. वो बाइबल का एक शिक्षक था. He used to teach the word of God. वो परमेश्वर का वचन सिखाता था. Every time I go to the church, I feel God present in that place. हर समय जब मैं कलीसिया जाता था, मुझे लगता है परमेश्वर की उपस्थिति वहां पर थी. So one day I went to him and I said, Pastor, can I come and meet you? तो एक दिन मैं उनके पास गया और मैंने पूछा कि पासवान, क्या मैं आपसे मुलाकात कर सकता हूं? He said, yes. उन्होंने Come कहा, 11 o'clock. आइए 11 बजे आइए. I went. मैं गया. We both were sitting and talking for a long time. हम दोनों वहां बैठकर बड़े लंबे समय तक हम बातें कर रहे थे.
I didn't know I am connecting to a father. मैं नहीं जानता था कि मैं एक पिता के साथ संपर्क में आ रहा हूं। He went and showed me all his library. और वो आए और उन्होंने मुझे अपनी जो लाइब्रेरी थी वो सारा दिखाया। He told me whatever books you want, you take. और उन्होंने मुझसे कहा जो भी किताब तुम्हें चाहिए इसमें से तुम ले सकते हो। I was waiting. मैं तो राह देख रहा था। I took so many books. I went, I read and gave it back. मैं- That was my regular. Every month I go and meet him. और यही मेरी एक आदत बन गई कि मैं हमेशा उनके घर जाता था, कई सारे किताबों को लेता था, पढ़कर वापस लौटाता था और हर महीने मैं उनसे मुलाकात ऐसे करता था। One day he showed me a big carton of books. और एक दिन उन्होंने बड़ा सा एक बक्सा दिखाया जिसमें किताबों से भरा हुआ था। Thomas, all these are old books. I want to give it to Radhi. You see whether you want anything. और उन्होंने मुझसे कहा कि थॉमस देखो ये सारे किताब तो बहुत पुराने हो चुके हैं, मैं रद्दी में बेचने वाला हूं, तुम्हें अगर कोई किताब चाहिए तो ले ली। I went, called an auto, took the whole carton to my house. और मैं गया, मैंने एक रिक्शा को बुलाया और ये सारा बक्सा ही मैं लेकर रिक्शा में लेकर मैं अपने घर ले गया। My friends, मेरे दोस्तों, this has strengthened me in my life. और मेरे जीवन में इसी विषय ने मुझे बल दिया है। I was a young, unmarried professor in a college. मैं तो एक जवान, मेरी विवाह नहीं हुई थी तभी ही, और मैं एक कॉलेज में शिक्षक था। But I knew a lot of things about faith life from this man of God. लेकिन जीवन के बारे में मैं कई सारी बातें जानता था इस एक व्यक्ति के द्वारा। One thing he taught me was the glory of God. और एक बात जो उन्होंने मुझे सिखाई वो है परमेश्वर की महिमा। He taught me so many things. कई सारी बातें उन्होंने सिखाई है। You need to connect to a father आपको एक पिता के संपर्क में आना है, because only your father can bless you. क्योंकि केवल एक पिता ही आपको आशीष दे सकता है। This year I was turning back and I was looking at my life. और इस साल मैं अपने ही जीवन में मुड़कर देख रहा था कि मेरी जीवन कैसी थी। I realized a very strange thing. एक बहुत ही विचित्र बात को मैंने पहचान लिया, And that is this. और वो ये बात यही है, Whatever blessing I have today in my life, जो कोई भी आशीष मेरे जीवन में आज की तारीख पे है, it is given to me by my fathers. और ये मुझे दिया गया है मेरे पिताओं के द्वारा। I have no blessing in my life which my fathers have not given. मेरे जीवन में ऐसी कोई भी आशीष नहीं है जो मेरे पिताओं ने मुझे नहीं दिया है। Today, whatever position I have, it is given to me by my father. आज जो कोई भी स्थान मेरे पास है वो मेरे पिताओं ने मुझे दिया है। Then I went ahead and I came to a conclusion. It is only the father who can bless you. और फिर मैं आगे बढ़ा और मैं इसी बात पे मेरी समझ आ गई कि अब पिता के द्वारा ही एक आशीष आती I है। started this message. Your father is given to you in your life to bless you. और मैंने आज का ये संदेश शुरुआत किया था ये कहकर कि एक पिता को आपके जीवन में दिया है ताकि आपको आशीष दी जाए। I am not just shooting in the air, saying a statement like that. It is a distilled expression of many decades of my life. और ये मैं कोई हवा में तीर नहीं मार रहा हूं, लेकिन ये मेरे जीवन के कई सालों के अध्ययन का एक भाग है। Only a father can bless you. केवल एक पिता ही आपको आशीष दे सकता है, Nobody else actually blesses you. कोई और सचमुच आपको आशीष नहीं कर सकता। Today church is full of elder brothers. आज कलीसिया भरी हुई है बड़े भाइयों से। It's really a deplorable thing to have elder brothers. ये बहुत ही ऐसी दुखद बात है कि ऐसे केवल ऐसे बड़े भाई हमारे जीवन में भरे हुए हैं। Elder brothers don't love us. और जो बड़े भाई है वो कुछ बड़ा प्रेम नहीं करते हमसे। I'm not talking about the elder brothers who are sitting here. I'm talking about Luke chapter 15. Please understand my words. मेरी बातों को आप समझिए, यहाँ पे अगर कोई बड़ा भाई बैठा है तो उनके बारे में नहीं बात कर रहा। I'm not talking about the elder brothers. Some elder brothers are very good. कुछ बड़े भाई यहाँ बैठे हैं वो बहुत अच्छे हैं। लूका का सुसमाचार 15वें अध्याय के बारे में बात कर रहा हूँ। Yeah. When the prodigal came back to the father's house, the father received him. But the elder brother did not receive him. That's what I am saying. So today in the church,
We cannot be elder brothers. We have to be fathers. और जहां पर वो पुत्र सारी बातों को अपने जीवन आयु पिता के सारे पैसे को खर्च करके वापस जब वो लौटता है तो जो उसका बड़ा भाई है उसे स्वीकारता नहीं, लेकिन पिता उसे स्वीकारता है. So definitely that boy, he took all the money, went and squandered it. और निश्चित तौर पर वो जो लड़का था उसने सारा पैसा ले लिया और वहां जाकर उसने सारे पैसों को खो दिया, नष्ट कर दिया. If he has taken some money and started an industry, अगर कुछ पैसा लेकर कुछ व्यवसाय शुरू कर दिया था, better, right? कुछ बड़ा काम कर लिया होता तो अच्छी बात थी. But he wasted everything. लेकिन उसने उसको बर्बाद कर दिया. And he went and stayed in a pig's house. और फिर एक सुअर को पालने के स्थान पर वो जाकर रहने लगा. He has not understood the father. He said, I will go and be a servant with him. और उसने एक पिता को समझा भी नहीं है. वो कहता है कि मैं वापस लौटकर एक नौकर बनकर जीऊंगा. That is why to understand a father is more important. और इसीलिए मैं कहता हूं कि एक पिता को समझना बहुत अधिक महत्वपूर्ण है. He came back to serve the father as a servant. वो घर पर वापस लौट रहा था ताकि वहां पर वो सेवा कर सके, नौकर बनकर जी सके. But the father gave him the signature. लेकिन जो पिता था उसने अपना सबसे महत्वपूर्ण अंगूठी दे दिया. With that is a decision making authority. और वो जो अंगूठी है वो निर्णय लेने वाली अंगूठी है, वो अधिकार रखता है. Yes. He put the robes on him. और उस पर बड़े से वस्त्र पहना दिए उसे. Symbolic. ये सब बड़े चिन्ह है. He reinstated him as a son. और उसको वापस अपने स्थान पर एक पुत्र के तौर पर उसे वो पिता लेकर आता है. That is the heart of a father. यही एक पिता का हृदय है. Giving birth to babies doesn't make you a father. बच्चों को जन्म देना ये आपको कोई पिता नहीं बना देता है. That anybody can make it. कुत्ता बिल्ली भी पिताजी बना. ये तो कोई भी कर सकता है. No, I am not talking about. मैं इसके बारे में बात नहीं कर रहा. Physical father. No. जो शारीरिक पिता है उनके बारे में बात नहीं कर रहा. The father which is said in the word of God. जो परमेश्वर के वचन में दिए गए हुए पिता है उसके बारे में बात कर रहा हूं. Yes. हाँ. Today as house of prayer, it is my desire. और हाउस ऑफ प्रेयर होने के नाते ये मेरी इच्छा है. You will identify a father. आप अपने जीवन में एक पिता को पहचान ले. You will receive a father. आप एक पिता को स्वीकार ले. And you will honor a father. और आप एक पिता का आदर करें. And you will get what you have to get from a father. और जो बातें आपको हासिल करना है एक पिता के ओर से वो आप हासिल करें अपने जीवन में. When you have an orphan mindset, you will never identify a father. You will never relate to a father. अगर एक अनाथपन की आत्मा आप में है, एक मनस्थिति आप में है, तो आप कभी भी एक पिता को आप पहचान नहीं पाएंगे. One of my greatest desire is that you connect with the father. सबसे बड़ी एक इच्छा जो मेरे हृदय में ये है कि आप सब अपने पिता को पहचान पाएं. Yes. And let me tell you. Being a father is not anything to do with the gender. और इस बात को आप समझिए, एक पिता बनना इसमें आप स्त्री हो या पुरुष हो ये मायने नहीं रखता है. It's an office. ये एक दफ्तर है, एक स्थान है. Yeah. There is no women, no men. Bible says father, son. It's an office. ये एक दफ्तर है, एक पदवी है. इसमें कोई स्त्री या पुरुष नहीं होता है. ये एक पदवी है जो आपको दी जाती है, एक पिता का, एक पुत्र का. ये इसमें कोई आदमी या औरत के बारे में बात नहीं कर रहे हैं. Yes. When I came to Mumbai, I know I don't have any leader, no one was there. I was an orphan. जब मैं मुंबई शहर में आया मैं जानता था मेरा कोई अगुवा नहीं था, कोई पिता नहीं था. मैं एक अनाथ के समान यहां पर आया. Over a period of time, I found Pastor Joseph. लेकिन कुछ समय के पश्चात मैंने पासवान जोसेफ को पाया. Then I began to receive him. I identify he is a father, so I received him. I honored him. और मैंने उनको एक पिता के तौर पर पहचान लिया था और उन्हें मैं अपने जीवन में मैंने उनको स्वीकार लिया.